कपिल देव, क्या कहानी है इसकी? कपिल देव ही इज अ लेजेंड। 3 साल पहले वो मेरी प्रॉपर्टी पर आए थे। 5 कमरे आपको क्या ही तो दे देंगे, लेकिन आपको जो एक पहचान मिल रही है, एक अपने वजूद की, एक खुद में सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। यू फील द वैल्यू। कभी सोचा है एक दरवाजा केवल एक लकड़ी या रंग का टुकड़ा नहीं होता है, वो एक एहसास होता है नए सफर की शुरुआत का, नए रिश्ते की दस्तक का। What made you start this homestay? My life journey has also been full of adventures and stories and memories. So Right. revenge tourism एक concept start हुआ था तब, and that is how my visibility graph just started and went up like this. What is the role or contribution of homestays in a holiday? Homestay, you provide a personal touch, privacy and your own space. How do you ensure good quality food, good comfort so that the guest is satisfied? It's not easy on my pocket. Do homestays make money? आपका छोटा मोटा खर्चा, आपकी प्रॉपर्टी के लोन्स, आपकी मेंटेनेंस, वो सब, उसके लिए भी तो काफी पैसा चाहिए होता है, वो सब मैनेज हो जाता है. How do you market your place? Word of mouth is the 50%. But that takes time. That takes time. So we are growing organically. What inspiration women who are watching this podcast can take from you, ma'am? 40 की एज तक अगर मैंने कोई करियर नहीं किया, आई वाज अ होम मेकर टेकिंग केयर ऑफ माय फैमिली एंड माय चिल्ड्रन. अपनी पहचान बनाने के लिए कोई उम्र नहीं होती. आई स्टार्टेड दैट एट 40. मैंने होम स्टे किया. आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसको कर सकते हो. Reviews कितने important हैं? आप ना नर्व्स पकड़ लेते हो इंसान की. How do you create a balance between revenue and growth? What surprises you the most? देखो, रेवेन्यू एंड ग्रोथ दोनों कनेक्टेड टू ईच अदर है, बट आप मेन हेड, उसका हेडर, उसका आप ग्रोथ रखो. आई कीप ग्रोथ एज द मेन एंड रेवेन्यू फॉलोज. कभी सोचा है एक दरवाजा केवल एक लकड़ी या रंग का टुकड़ा नहीं होता है, वो एक एहसास होता है नए सफर की शुरुआत का, नए रिश्ते की दस्तक का. तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही दरवाजे की, द ब्लू डोर. ये सिर्फ एक होमस्टे नहीं, एक कैनवस है जहां मेहमान अपनी यादें रंगते हैं और हर गेस्ट की कहानी यहाँ की होस्ट कविता मैम के दिल से जुड़ जाती है. तो चलिए दोस्तों, खोलते हैं द ब्लू डोर, होमस्टे की कहानी होस्ट की जुबानी. और इस कहानी को हमारे साथ शेयर करने वाली हैं कविता मैम, द ओनर ऑफ द ब्लू डोर होमस्टे. सो कविता मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक यू. तो मैम, आपके होमस्टे में आज हम आए हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे, हमारे श्रोता सुनेंगे, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक बैक. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी की, आपकी कहानी की. व्हाट मेड यू स्टार्ट दिस होमस्टे? You know, thank you so much for having me and interviewing me. I'm really honored. And to tell you, this is a very good initiative you have taken, and this will definitely help my viewers, the hosts, the guests, I mean people who are running homestays and people who will be coming to homestays, to understand what actually a homestay offers. And hospitality has been in my blood. I've seen my mother, my grandmother, everybody, and with such passion they were welcoming their own family members. So I grew up in a joint family, which so it naturally is there in me, and I realized that it is a passion for me. Right. And though I am a science background, then I did literature also after marriage, but ultimately I realized that my passion lands in hospitality. Right. And what better platform could I get than running a homestay, because there is no one at this age, no one you are answerable to. आप अपनी मर्जी के मालिक है, अपने तरीके से अपनी जिंदगी, अपनी बिजनेस और अपने मेहमानों को, उनकी स्टोरीज को एक दूसरे के साथ हम एक्सचेंज कर सकते हैं. उन्हें उनकी पसंद का खाना खिला सकते हैं. नो वन telling me what to do and what not to do. Very true, very true. So it happened after my kids cleared their 12th, and my 40th birthday was the start of my career. Okay. Yes. That was a new start. Yes. A new beginning. तो बच्चों की ड्यूटीज भी पूरी होनी है. Right. As a housewife, you have to take care of your family, of your kids. So once that whole thing, they went to their colleges, I had time for me, myself, and that is how
I started with this homestay. So one beautiful journey, and especially if we focus on women, Yes. you give a lot of time to your husband, then children. Yes, yes. तो आपने कहा मेरी आइडेंटिटी, Yes. तो क्या कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी इस होम स्टे के द्वारा आप सोच रहे थे बनाने की? Definitely, for my identity, this is the best platform. क्योंकि आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है कि आप कहीं जॉब कर लोगे. करेक्ट. आप कोई बहुत बड़े, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा होटल या एक बहुत बड़ा बिजनेस रन कर लो. उसके लिए भी पैसा और एक्सपीरियंस चाहिए. बिल्कुल. This is the best thing, best platform, and luckily, especially after COVID, people have started understanding the value of staying in these villas and homes as homestays, because एक तो उनकी visibility हर जगह पहुंच गई है. Right. ऑनलाइन बहुत सारे secluded areas में भी now people can see and go and live. Right. Unlike earlier days where this was a real challenge. सारे सबको मॉल रोड में चाहिए था. Yes. And I started my career just by the end of COVID. तो रिवेंज टूरिज्म एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था तब जी. एंड दैट इज हाउ माय विजिबिलिटी ग्राफ जस्ट started and went up like this. So by God's grace, I was able to, people jail में इतने दिन से कैद थे अपने घर में जेल की तरह कैद थे. And suddenly they wanted freedom and to be out, and they didn't want to be in a crowded area. They didn't want to be traveling in planes because risk था. Right. So that is how a place which was ideal from distance wise, from generally आप देखिए the location where Blue Door is situated is a capital city. Dehradun है, उत्तराखंड का capital है. Airport is just 1 hour from us. Right. Delhi capital से अगर आप आ रहे हो तो आप by road भी 4.5-5 hours में आ जाते हो. और अब तो 2 घंटे में भी आ सकते हो. And then हर city से हमारी plane connectivity है. Correct. And I am very close to the city, and yet I am in a serene environment. I am in a forest. Correct. तो यहाँ तो ब्लिंकिट जोमेटो भी आते हैं. ब्लिंकिट जोमेटो भी आते हैं. बट अब तक मेरे 4-5 साल की करियर में आज तक किसी ने जोमेटो से खाना नहीं बनाया. क्योंकि ये हमारे स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट के लोगों को तो हॉलीडे का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलीडे? खाना एंड कंफर्ट इन अ वेरी नीट एंड क्लीन प्लेस, जहाँ पे आपकी लाइफ थोड़ी स्लो डाउन हो जाए. क्योंकि वो डेली की हसल बसल से दे जस्ट, what is a holiday? It's just slowing down your life, chilling with your friends, having good food and good place, which is just cherry on cake. So ma'am, you just talked about holiday. Holiday is something about slowing down. Yes. What is the role or contribution of homestays in a holiday? Ideally speaking, good services are provided in very big hotels, 3-star, 5-star hotels. And homestay, you provide a personal touch, privacy, and your own space. Right. It's like your second home. And when you're in the Himalayas or when you're in the mountains, it's a home in the Himalayas. Your second home in the Himalayas. Or when you're going to beaches, beach places, there it is your second home. Because आपको जो सर्व कर रहे हैं, आपका जो रूम है, आपकी जो स्पेस है, वो एनक्रोच नहीं है किसी और, कोई और गेस्ट से. That's totally like your home. बट समहाउ इन अ होम स्टे आई फील, जब ओनर रह रहे होते हैं तो एक एडेड एडवांटेज ये होता है कि यू आर सेफ्टी, आपकी फैसिलिटीज और आपकी केयर, वो टोटली यू आर सीन. आप ये दोनों चीजों का एमलगम हो जाता है, दैट यू आर सर्व्ड एंड सीन बोथ व्हेन द होम स्टे इज टेकिंग वेल केयर, एंड स्पेशली आप यू एंश्योर दैट फूड इज अ वेरी गुड क्वालिटी एंड टेस्टी. अब इसमें फिर एक बात करते हैं. आपने कहा कि फूड, यस, कंफर्ट, यस, तो ये 2 चीज पे आप फोकस कैसे करते हैं? हाउ डू यू एंश्योर? एंड यू आल्सो सेड दैट होम स्टे में इफ द होस्ट इज देयर ऑलरेडी लिविंग देयर, इट इज चेरी ऑन द केक. यस. हाउ डू यू एंश्योर गुड क्वालिटी फूड, गुड कंफर्ट, so that the guest is satisfied? Very valid point you are asking. It's not easy on my pocket. क्योंकि when you have just 5 rooms, आप क्या ही तो कर लोगे, क्या ही तो कमा लोगे, और the property becomes an asset. It's not a liability on you, first of all. आप जब आप खुद रह रहे हो, लोगों से रोज मिल रहे हो, there is energy, there is life, there is movement in your own house. ये advantage मेरे लिए है. World is traveling to me.
I'm seeing the world through their eyes. The world is coming to you. The world is coming to me Great. free of Right. cost. Right. The property is sustaining. They bring their stories, they bring their experiences, and they compare this place to other stations where they have gone, and a lot of memories I take from them. Right. And in the similar way, my life journey has also been full of adventures and stories and memories, which generally, like, because my husband was in Indian Forest Service, Okay. so we've lived in Andhra Pradesh, we've traveled a lot, and we've literally lived in forest and tribal areas. तो जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि भाई हमको तो ये नहीं, गॉड आज मेरा होमवर्क नहीं हुआ, अरे आज मेरा ये नहीं हुआ, आज मेरी कार खराब हो गई, आज मुझे नई कार चाहिए थी, उसके पास तो नई कार है. ये सब चीजें आप है ही नहीं when you are amidst nature. Right. नेचर टीचर्स यू, जैसे कोई लाइक माइलो है या कोई जानवर है, वो ये नहीं सोचता कि कल मेरा क्या होगा, परसों मेरा क्या होगा. दे लिव इन टुडे. सो दिस इज व्हाट नेचर टीचेस यू. Right. सो बीइंग हियर यू शैल बी पार्ट ऑफ नेचर, एंड आप क्राइसिस मैनेजमेंट सीख जाओगे. आप घबराओगे नहीं किसी चीज से जल्दी. ये जो आज की फास्ट वर्ल्ड है ना, ये चीज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो बेसिकली आपने ग्राउंड वर्क देखा ही नहीं है. देखा ही That's what नहीं you're saying. है. अब जिसने देखा है उसके लिए सब चीजें बहुत नॉर्मल सी हो जाती है. नॉर्मल सी हो जाती है. फूड की बात कर रहे थे. तो उसके लिए मैंने जो सॉरी मैंने पूरा कंप्लीट कोई नहीं, नहीं किया था क्वेश्चन का आंसर. Go आई ahead, जस्ट go ahead. आई हैव 2 chefs. Right. One of them is from Marriott, and I have 2 cooks full time at the property, Right. and I have 6 people to serve you and housekeeping. So around 10 people are there for 5 rooms. तो ये एक USP है मेरी. This is how आप रात को 12 बजे भी गर्म खाना सर्व होगा आपको, क्योंकि शिफ्ट में वो काम करेंगे. Right. तो they are there for you till 12, and they are there up for you from 6 in the morning. तो और खाने में आपको नेचुरली व्हेन आप यू गो आउटसाइड, यू डोंट वांट ऑलवेज वांट कि टिपिकल घर का ही खाना चाहिए. यू वांट समथिंग डिफरेंट. सो हमारे पास तंदूर शेफ है, हमारे पास कॉन्टी शेफ है, थाई, सारा खाना वो इतनी कुजीन्स बनाता है. चूल्हे का खाना भी हम प्रोवाइड करते हैं. सरसों का साग और मक्का की रोटी आप आपकी विंटर्स में मेरे पास खाइए, आपको पानी के हाथ से चूल्हे पर बनाकर खिलाएंगे. तो ये कोई इतने एफर्ट्स, पर्सनल एफर्ट्स नहीं लेता ये सब प्रोवाइड करना. दिस कम्स विद अ कॉस्ट. सो in a way I lose on my profit, but then it is my passion first of all. So ye you are not following the money follows you. Very valid point, ma'am. I think I was coming to this, and a lot of viewers have this thing. Do homestays make money? I'm telling you, the property becomes a asset. आपका छोटा मोटा खर्चा, आपकी प्रॉपर्टी के लोन्स, आपकी मेंटेनेंस, वो सब, उसके लिए भी तो काफी पैसा चाहिए होता है. वो सब मैनेज हो जाता है. और फिर जो आप यहाँ काम कर रहे हैं उनका भी तो घर चल रहा है. मुझे तो लगता है भगवान का मैं एक जरिया हूँ इन सब की फैमिलीज को वो करने का. एंड समटाइम्स सीजन टाइम में आप 2-3 महीने का कवर अप कर लेते हो. उस टाइम अगर लीन पीरियड भी है तो यू कैन डाइवर्स योरसेल्फ इनटू रिट्रीट्स और इनटू सम वर्कशॉप्स. you should be open to that, because कोई भी प्लेटर पे, कोई भी बिजनेस, कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी होम स्टे, एवरीथिंग, सब कुछ आपको अपने आप क्रिएट करना है, दिमाग लगाना है और कैसे उसको इम्प्रूव करना है ये सोचना है. यू हैव टू कीप थिंकिंग अबाउट हाउ टू गेट बिजनेस, हाउ टू इम्प्रूव. और उसका सबसे, क्योंकि एज ए होम स्टे मैंने कोई मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया, मैंने कोई MBA नहीं किया है, तो मैं तो अपने लेमन लैंग्वेज से, अपने दिमाग से सोचती हूँ कि किस तरीके से इस पीरियड को कैसे कवर करो, इस पीरियड को कैसे कवर करो, हाउ टू सेव फॉर रेनी डेज, हाउ टू बी कंट्रोलिंग योर बजट, हाउ टू मेंटेन द प्रॉपर्टी. और सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि देखो, आपको पूरा जो भी आप अर्न करते हो उसका कुछ पार्ट सेव करके रखना चाहिए, जो कि हर गृहिणी करती है. तो सेविंग हो जाती है. प्लस आपका जो स्टाफ है वो हमेशा नई नई डिशेस का इनोवेशन करते रहना चाहिए. जब भी गेस्ट, रिपीट गेस्ट के लिए क्या वो सेम फूड आएगा. अब मेरे पास 4 कुक और शेफ है. लंच एक क्या हाथ का बना होता है, डिनर एक का बना होता है. इतनी वैरायटी ऑफ फूड, क्योंकि एक ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं लेकिन हर एक के हाथ में टेस्ट अलग होता है. आपको बेस्ट ऑफ क्वालिटी फूड, वैरायटी ऑफ फूड प्रोवाइड करनी है. तो दिस इज द वे यू कैन डू इट. देन गेस्ट, रिपीट गेस्ट, मेरे सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं मानती हूँ रिपीट गेस्ट. करेक्ट, बिल्कुल सही बात है. एंड 50% ऑफ माय गेस्ट आर रिपीट गेस्ट. I think that is a great achievement. We are all probably inspiring and to become one of that.
कि Yes. 50% आपके जो गेस्ट हैं रिपीट गेस्ट हैं, तो यू हैव अ वेरी गुड वर्ड ऑफ माउथ, राइट? Yes, yes. कमिंग टू वर्ड ऑफ माउथ, मैम, हाउ डू यू मार्केट योर प्लेस? Word of mouth is the 50%. But that takes time. That takes time. So we are growing organically. You're going, Initially, revenge tourism of COVID helped me. right? उसके बाद मैं I am listed on Airbnb, I am listed on Make My Trip and GoAbibo, and definitely Instagram also helps me. ये जितनी भी मॉडर्न ये पूरे नेटवर्किंग और ये सब है, ये सब हमें तो हेल्प करता ही करता है. और आप तो उसमें हो ही पूरा. Yeah. You're So totally subscribed. I have a team who takes care of keep updating reels and stories on Instagram, Mhm. and we have a blue tick, and we have around 45 to 46,000 followers. That's So great. I think that also helps. So a complete 360-degree marketing, Instagram, social media, YouTube. You also have a YouTube channel? I don't have a separate YouTube channel, but कभी कोई गेस्ट आते हैं, कुछ पूछते हैं, या आप जैसे सेलिब्रिटीज आते हैं, you know, आज आप सेलिब्रिटी होगा. आज मैं सेलिब्रिटी हूँ, but then the work that you are doing is like किसी का इंटरव्यू लेना, किसी से उसकी बात समझना, सुनना, ये भी एक टैलेंट है, which everybody cannot do. I think आपके पास भी वो है. बहुत Yes, अच्छा. you have it. When you started ना, आपने कहा था यार मैंने कोई मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया. Yes. I belong to a joint family. और हम भी यही देखते हैं कि हॉस्पिटैलिटी जो है प्रॉब्ली इंडियंस को सिखाने की जरूरत नहीं है. No. तो मैम सीखना क्या है अगर एक होम स्टे शुरू करना है तो? आप राइट काइंड ऑफ पीपल जॉब के लिए रखो, जो ऑनेस्ट हो, कमिटेड हो, और वो कनेक्ट बनाना जानते हो गेस्ट से, बिकॉज सबसे पहले तो वही आपको वेलकम कर रहे हैं, वही आपको सर्व कर रहे हैं. अगर वो सफाई ठीक से नहीं करेंगे अपने दिल से, क्योंकि आप कभी भी, आई टेल माई स्टाफ, आई एम नॉट पेइंग यू, इट इज द ब्लू डोर विच इज पेइंग यू, एंड अब इसकी इनकम होएगी तभी आपकी सैलरी है, एंड देन आई गिव देम इंसेंटिव्स, लाइक इफ दे डू गुड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या गूगल पे लोग उनको पर्टिकुलरली किसी नाम से अप्रिशिएट करते हैं, तो हम साल में एक बार आपस में एक पार्टी होस्ट करके उनको हम, आई रिवॉर्ड देम विद मनी, करेक्ट, यू नो, एज एन इंसेंटिव. एंड सपोज कभी उनको टिप्स की ये लगता है कि नहीं मैम हमने तो एफर्ट ज्यादा किए हैं, तो मैं उनको उनकी मेहनत के हिसाब से उनको एक्स्ट्रा पे भी करती हूँ. ग्रेट. ये मैनेजमेंट की स्किल्स कहाँ से सीखी आपने? ये वक्त सिखा देता है, जिंदगी के थपेड़े सिखा देते हैं. थपेड़े सिखा देते. मैम कई लोग होम स्टे शुरू कर रहे हैं, जैसे हमारे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, वो उनके दिमाग में आज भी है कि होम स्टे बहुत पैसा कमाएगा, एफर्ट कम है. क्या ये सही सोच रहे हैं? ज्यादातर लोगों ने ये किया है, बड़े बड़े घर इतना पैसा लगा के छोड़ दिए 2 केयर टेकर के ऊपर, रात बेरात कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सिचुएशन आ जाती है, छोटी सी भी हो, मैं कहती हूँ, जैसे हमारे एक पेशेंट, किडनी पेशेंट थी, शी हैड एन इमरजेंसी, इमीडिएटली बिकॉज आई वाज देयर, हम उनको हॉस्पिटल ले गए. हॉस्पिटल इज जस्ट 15 मिनट्स फ्रॉम हियर, बट इस तरह की सिचुएशन आ जाए या करंट चला जाए, यू हैव टू इंश्योर कि जनरेटर में डीजल है, आपके पास जनरेटर भी है. ये भी इम्पोर्टेंट है. कभी कभी बहुत लैंडस्लाइड या बारिश या उसकी वजह से खंबे वंबे तार टूट जाए तो फिर क्या कैसे होगा? तो ये सब चीजें एक होटल ही प्रोवाइड कर पाता है. होम स्टेज में ये चीजें तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप पर्सनली वहां रहकर उसको लुक आफ्टर करो. तो ये एक डिफरेंस होता है जिसको मैंने महसूस किया, एंड आई इंश्योर्ड दैट दिस प्रॉब्लम डजंट हैपन टू द गेस्ट हु कम टू मी. मैम यू आर गिविंग सो मेनी सर्विसेज, एज यू सेड, भाई पावर बैकअप दे रहे हो आप, लग्जरी दे रहे हो, आप फूड भी अच्छा दे रहे हो, सर्विस भी अच्छी दे रहे हो. मैनेज कैसे होता है? तो करना ही पड़ता है. आपने एक चीज तो मिस ही कर दी. बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हम प्रोवाइड करते हैं. एक्सपीरियंस लाइक रिवर पिकनिक हम ऑर्गेनाइज करते हैं गेस्टों के लिए, मूवी नाइट अंडर द स्काई, दैट आल्सो वी गिव, स्पेशली गेस्ट कम फॉर दिस मूवी नाइट एंड रिवर पिकनिक. आपने कभी बचपन में ही कभी अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक पर गए होंगे, उसके बाद तो आपने ये चीज, क्योंकि एक तो पहली बात घर के इतने पास नदी नहीं होती भी है तो खराब गंदी होती है, या फिर बहुत बड़ी होती है तो उसमें भी थोड़ा डर लगता है. ये तो एक रिवर स्ट्रीम है, तो हम उसी के पास पूरा टेबल चेयर लगा के पूरा पिकनिक सेटअप है मेरे पास. एक आई स्पेशली केप्ट 2 पीपल फॉर दैट. तो वो ले जाते हैं पूरा ब्रेकफास्ट लंच, हम उनको वहीं स्प्रेड करके देते हैं, समटाइम्स वी लेट देम कुक आल्सो देयर. राइट.
कुछ नहीं तो मैगी और चाय हम्म। बना लो। वो बच्चे वो चीज को कभी नेचर के साथ ये चीजें उन्होंने कभी करी नहीं आज तक, उनको पहली बार ये फील होता है। और ये मुझे मेरे बचपन का ये मुझे आज तक याद रहता है। तो आई थॉट आई विल गिव दिस टू माय गेस्ट। दिस इज व्हाट यू वैल्यू, और ये Yes. मैं गेस्ट को दे रही हूँ. ऑफ कोर्स दे विल लाइक इट. Yes. ये एक्सपीरियंसेस, आई मीन समवेयर गिविंग देयर चिल्ड्रन कनेक्शन विद नेचर यस, एंड लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच दे डोंट सी इन अ सिटी लाइफ, राइट? सिटी लाइफ में उनको गैजेट्स और कंप्यूटर और लैपटॉप और ये फोन, मोबाइल फोन और क्लास, मतलब पहाड़ भी उन्होंने स्क्रीन पे देखा है, टॉयज, यस, तो फील नहीं करेंगे वो. या दैट करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. करेक्ट. यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद सो मेनी थिंग्स मैम. आप कह रहे हो कि एक आज होमस्टे ओनर जो है बिल्कुल पैसा बनेगा, जैसे आपने कहा, क्योंकि यू आर एबल टू सस्टेन such a big property. Yes. You are able to feed your family of 10, 12 workers who are working with you. Yes. Still, you are able to save some money for rainy days. Yes. So I think that is already you're making a good money. So homestays can make money. ये Yes, आपने yes, कहा yes, है. yes. The only thing you said is there has to be a ideation कि यार और क्या कर सकते हैं. हाँ. जैसे आपने कहा मूवी नाइट्स, पिकनिक्स, और आप क्या क्या चीजें करते हैं मैम? जैसे आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, बिकॉज वी आर अमिस फॉरेस्ट, तो हम ट्रैकिंग पे ले जाते हैं, बर्ड वॉचिंग के लिए, स्टार गेजिंग की मैंने फैसिलिटी प्रोवाइड करी है. तो मिस्टर गांधी हैं, ही इज अ वेरी गुड बर्ड वॉचर एंड स्टार गेजिंग कराते हैं. सो आई हैव कॉन्टेक्ट्स विद हिम. देन आर्टकेशन, जब हम नॉन सीजन टाइम पे लोगों को यहाँ पर रिट्रीट्स के लिए बुलाते हैं, तो रिट्रीट्स का कॉन्सेप्ट लोगों के मन में ये है कि इट इज ऑल योगा, इट इज ऑल मेडिटेशन. बट आजकल इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है. 10 से 12 लोग के ग्रुप यहाँ आता है एंड वी प्रोवाइड देम विद क्ले, एक एक्टिविटी, पॉटरी मेकिंग विद क्ले, देन पेंटिंग नीचे नदी के पास हम पूरी टेबल पेंट पूरा रख के उनको दे आर एबल टू पेंट रिवर, पेबल्स भी पेंट करते हैं बच्चे. अगर आप मेरे हॉल को देखोगे तो वी प्रोवाइड देम विद कलर्स एंड ब्रशेस एंड पेंट्स एंड stones, छोटे छोटे, and canvas. So the children and even the the elderlies and grown-ups, they all enjoy sitting here and painting. So, it relaxes them, and for that moment they are forgetting all their stresses. So definitely happiness hormone तो बढ़ेगा. हैप्पीनेस हार्मोन तो बढ़ेगा. हमारे पास भी हैप्पीनेस इंडेक्स होना चाहिए मैम, भूटान की तरह. यस. इसकी मैं आपको 2-3 बात बताती हूँ. एक 3 साल का छोटा सा बच्चा था, and जब वो आया तो he was reluctant to come inside and said no, this is not my home. And after 3-4 days stay, when they were going back, he was crying not to go back. ये मेरा घर है, my home. तो एक 3 साल का बच्चा कुछ फेक तो कर नहीं सकता. वो दिल से खुश रहा. He was part of nature. And उस एज में अगर आप एक्सपोज करते हो बच्चों को नेचर से, और वो भी सेफ वे में, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई डर नहीं किसी चीज का, क्योंकि फिर या तो डेंस फॉरेस्ट फिर ज्यादा रिस्की हो जाता है. यहाँ तो ये कि पास में हॉस्पिटल्स भी हैं, आप सिटी से भी क्लोज हो, सेफ भी है, सब वे में उनको एक्सपोजर मिला. एक 90-year-old मेरे यहाँ आए थे, उनका 90th बर्थडे उनकी दोनों डॉटर्स ने सेलिब्रेट किया. फॉर सम रीजंस दे वर नॉट सेलिब्रेटिंग दैट डे. तो मेरे पूरे स्टाफ ने, हमने देखा 9 बजे तक केक नहीं कट रहा, कुछ नहीं. मैंने बारिश में अपने स्टाफ को 9 बजे केक मंगवाया. अच्छा. बाहर रूम के बाहर बैलून्स वगैरह लगाए, एंड देन वी कॉल्ड देम आउट, एंड देन हमने उनके लिए गाना गाया, उनके लिए डांस किया, एंड he had tears in his eyes with happiness. Ma'am, when we were going around the property, we saw something unique. आपके जो रूम्स के नाम हैं बड़े ही यूनिक हैं, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, और भी कैसे कैसे मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक और मुझे नाम याद है मैम, कपिल देव. yes. क्या कहानी है इसकी? कपिल देव ही इज अ लेजेंड. 3 साल पहले वो मेरी प्रॉपर्टी पर आए थे. ओके. एंड ही केम विद हिज फ्रेंड्स एंड दे स्टेड हियर फॉर 3-4 days. एंड मुझे लगा कि इससे अच्छा मेरे लिए कुछ अचीवमेंट नहीं हो सकता मेरी प्लेस के लिए, कि इतना एक बड़ा लेजेंड मेरे यहाँ स्टे कर रहा है. So I dedicated that room in which he stayed on his name. Oh, that is great, wonderful. And he's such a wonderful person, सुबह 5 बजे when he was going, he signed that name plate and he said, कविता जी, इसकी वैल्यू मेरे साइन से ही है. अच्छा, क्या? मतलब I didn't think of it, but see, you can't ask anybody, that's a big thing to ask for. But he was so humble and so grounded. I think his name will be remembered till the world is there. So that's a beautiful story, ma'am. So इस पे एक और बात आ रही है मेरे को ध्यान,
Did Kapil Dev choose this property or the property chose Kapil Dev? So I didn't know that he's coming here. लास्ट मोमेंट तक उनका सीक्रेट रखा गया था क्योंकि मीडिया. Right. So he wanted his own me time with his friends. उनके डॉक्टर्स ने भी उनको एडवाइस किया था कि कभी कभी फ्रेंड्स के साथ चिल किया करो. एंड दिस चेरी ऑन केक इज द वर्ड गिवन बाय हिम. ही सेड कविता जी मुझे यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा लग रहा है. आई हैव अ वीडियो ऑफ इट. बट क्योंकि आपकी प्लेस इतनी अच्छी है तो ये हमारी हैप्पीनेस में इट्स लाइक चेरी ऑन केक. ओके. और सुबह रोज 6:30 आई यूज्ड टू टेक देम फॉर वॉक. यहाँ पर n नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं रिवर स्ट्रीम के अलोंग, अदरवाइज ऑल्सो. सो दे वुड ऑल वेट फॉर मी. बाहर बोट, मेरे पास एक बोट भी है उसके पास. दैट वाज हिज फेवरेट स्पॉट. एंड वन डे वो थोड़ा लेट हो गई, मैं 5 मिनट से. कविता जी लगता है आप आज नाराज हैं हमसे. आज हम बर्ड्स कैसे देखेंगे. सो आई वाज लाइक नाराजगी की तो बात नहीं है, लेकिन हाँ आज आपको बर्ड्स देख लेंगे कोई बात नहीं. कनेक्शन तो बन ही जाएगा. ब्यूटीफुल मैम. सो आई मीन होम स्टे से आपको ऑफ कोर्स यू बिल्ड जेल विद नेचर जैसे आप कह रहे हो, बट आल्सो you get an opportunity to meet such great people. Yes. Right. Yes. And it's not just कि आप स्लो डाउन स्पीड कर रहे हो, पेस कर रहे हो, नेचर से कनेक्ट हो रहे हो. रोमांस भी भरा हुआ है नेचर में. बिल्कुल. कीट्स की पोएट्री आप देख लीजिए, वर्ड्सवर्थ की देख लीजिए, नेचर को कितना रोमांटिसाइज किया है. राइट. What about butterfly, dragonfly? हाँ, उनके नेम्स. See, everybody generally keeps on rivers, on flowers, on animals. और इस एरिया में मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स देखे. इट्स अ ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड. अगर आप उसको देखें तो द रूम इटसेल्फ हैज द एंटायर थीम ऑन ड्रैगन फ्लाई. ओके. तो उसके कर्टन्स भी, उसकी वॉल पेंटिंग्स, उसकी सीलिंग, एवरीथिंग विल हैव अ कनेक्ट विद दैट. एंड ये नहीं कि टिपिकल होटल की तरह मैंने हर रूम में सेम लिनन, सेम कर्टन, सेम फर्नीचर. एवरी रूम हैज डिफरेंट थीम बेस्ड ऑन द नेम्स ऑफ insects. and queen bee, obviously queen bee का मतलब खुद में it's not honey bee, mind you. The third, it's a queen bee क्योंकि आपकी queen है वो. What inspiration women who are watching this podcast can take from you, ma'am? मेरे अंदर एक 40 की एज तक अगर मैंने कोई करियर नहीं किया, I was a homemaker, perfectly taking care of my family and my children. अपनी पहचान बनाने के लिए कोई उम्र नहीं होती. आई स्टार्टेड दैट एट 40. मैंने होम स्टे किया. आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसको कर सकते हो जिसमें जो है. और फिर 60 इज द न्यू 40. तो 40 तो फिर न्यू 20 हो गया ना. तो कोई एक्सपीरियंस के ऐसी कोई बात नहीं है. जिस दिन अगर आपके अंदर जुनून है तो आप अपनी रेखाएं भी बदल सकते हो. So earning for a homestay owner or a host is, I think, not only in terms of money. Yes. It is also in terms of experience. Yes. It's also in terms of the happiness you derive from hosting of course. people, right? आप कितना भी कमाते हो, आप इसी के लिए तो करते हो. है ना? वो मुझे मेरी बिजनेस में ऑलरेडी मिल रहा है. Right. That's what I've come into. Yes. तो मैम अगर कोई होम स्टे चलाना चाह रहा है तो शायद केवल पैसों पे फोकस करेगा. Yes. तो आई थिंक डिफरेंट काइंड का एटमॉस्फेयर बनेगा. नहीं, फिर वो कमर्शियल आपने उसको कर दिया तो वो जो सोल कनेक्शन है ना वो लॉस्ट हो जाएगा. आप छोटी चीजों पे आपने कंजूसी कर दी. कि खाना बना रहे हैं, अब मैं आई यूज कोल्ड कंप्रेस मस्टर्ड ऑयल, प्योर घी एंड ऑलिव ऑयल फॉर कुकिंग मीडियम. जो क्योंकि आप एक होम स्टे हो, यू हैव टू गिव. अब गेहूं लेके हम आटा पिसवाते हैं, जंगल में जो गाय चरती है उसका दूध यूज करते हैं, सब्जियां भी पूरा लोकल से वेंडर से हम प्रोक्योर करते हैं. तो अब धनिया और मिर्च आजकल तो घर में भी लोग पाउडर का लाने लगे. वो फ्लेवर ही नहीं रहता उसमें. तो आपके पास स्किलफुल शेफ्स भी हैं, प्लस रॉ मटेरियल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप बिल्कुल प्योरली ऑर्गेनिक एंड होम डन यूज कर रहे हो. वो एक एमलगम वो आपको तो होटल में तो मिलेगा, लेकिन होटल में वो चीज नहीं मिलेगी कि ये सब चीज वो दे डोंट यूज ऑलिव ऑयल और प्योर घी. When they use, they'll charge for it. They'll charge for it. And they will mention it. Yes. Now coming to this, ma'am, इतना आप कर पा रहे हो, whatever you think you're able to do. Of course, you have a decent background, but a lot of people are doing homestays for a passive income or actually a real-time income. So, how to create that balance? Are people ready to pay
that kind of money which is in being invested in providing these kind of services? देखो, वी आर नॉट दैट हाई चार्जिंग ऑल्सो, तो सस्टेन तो हो ही रही है। मेरी प्रॉपर्टी एक लाइबिलिटी नहीं रही है, एसेट हो गई है। मुझे भी मतलब खिला पिला रही है और मुझे भी एक रॉयल लाइफ दे रही है। राइट। इससे ज्यादा आप इससे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। 5 कमरे आपको क्या ही तो दे देंगे, लेकिन आपको जो एक पहचान मिल रही है, एक अपने वजूद की, एक खुद में सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है, और यू फील योर वर्थ, यू फील द वैल्यू, योर ओन वैल्यू। ये बहुत सारी मेडिटेशंस एंड रिट्रीट सेंटर्स में जाके आपको पैसे खर्च करके मिलता है। तो ये बड़ी अच्छी बात कविता मैम कह रही हैं कि देखो पैसा तो कमाना है, लेकिन पैसे का भोगना तो यही चीजों के लिए है ना, कि फाइनली यू आर गोइंग फॉर हैप्पीनेस, और आपको पैसा भी मिल रहा है यहाँ पे और हैप्पीनेस भी मिल रही है। तो ये तो अगेन देयर इज विन विन, यू आर अर्निंग बोथ थिंग्स। तो इस मामले में देखा जाए तो हम बहुत कुछ कमा रहे हैं। And then you're not answerable to anyone. And then you're not. It is you're an entrepreneur. Yes. हम इसको बुलाते हैं Airbnb-preneur, जैसे अपने चैनल पे। Yes. Airbnb is the best and safest platform for us. Right. क्योंकि एक तो वो किसी भी होम स्टे को प्रॉपरली उसकी वैलिडेट करता है, तो जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड उसका विजिबिलिटी है, तो दैट इज अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। सो देयर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स जो कहते हैं कि पेमेंट आफ्टर रीचिंग होता है, तो उसमें कई बार लोग बुकिंग्स फेक कर देते हैं अपनी उसके लिए, तो एंड देन पीपल डोंट टर्न आउट। Airbnb ensures that neither the guest nor the host suffer and mutually win-win हो। Right. Airbnb प्लेटफॉर्म की आपने बात स्टार्ट ही की, तो मैम आर यू गेटिंग गुड ट्रैक्शन फ्रॉम योर Airbnb लिस्टिंग? Airbnb लिस्टिंग से इतना नहीं, क्योंकि 4.5 years ही I am down this, but I do get, but say maybe 30% of my income. Right. So you mean to say अगर किसी को Airbnb से ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, आपने शायद खुद लिस्टिंग बनाई होगी शायद? हाँ, मैंने खुद लिस्टिंग बनाई। तो do you think a professional help in this goes a long way in increasing your revenue or probably making your property more visible and validated? छोटे छोटे कैच होते हैं, जो मैं इतनी टेक सेवी नहीं हूँ, कोई दूसरे में और कोई इशू होगा, आई एम नॉट दैट टेक सेवी, तो मैं वो कैच देख नहीं पाती हूँ Airbnb का, जिससे मेरा ट्रैक्शन बढ़े। क्योंकि आई वुड प्रेफर कि मेरी 100% बुकिंग उसी के थ्रू हो, क्योंकि जो अगर कोई डैमेज भी होता है, कोई बात होती है, कुछ होता है, Airbnb इज देयर टू कोऑर्डिनेट एंड टेक केयर। एयर कवर है मैम, उसका कवर है, और जो लोग आ रहे हैं उनकी भी वो पूरी तरीके से पहचान देखते हैं, और जो कर रहा है होस्ट उनकी भी पहचान देखते हैं। ग्रेट मैम, मतलब कंसल्टेंसी इज बिकम अ necessity. It's a necessity if you really want to do well. Great. नाउ मैम आ जाते हैं आपके रिव्यूज पे। हमने बहुत सारे आपके रिव्यूज पढ़े, 433 रिव्यू हैं आपकी प्रॉपर्टी के गूगल पे। उसमें से 238 ये बोल रहे हैं कि आपकी सर्विस वाह है। आपने बता भी दिया वाह है। आपने मेहनत करके आपने बता भी दिया कि भाई 10-10 का स्टाफ, मेरा पर्सनल अटेंशन। इस सब के अलावा एक ऐसी चीज बता दीजिए कि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो सर्विस को मेरी इतना इंपॉर्टेंस देती है। सर्विस को इम्पोर्टेंस देखो, ये पर्सनल टच हो गया, देन आई एम नॉट ओवर प्राइस्ड, देन माय स्टाफ इज आल्सो पार्ट ऑफ ओनिंग द ब्लू डोर। मतलब वी आर ऑल अ टीम, वी आर लाइक अ फैमिली। वो फैमिली इज वेलकमिंग अ फैमिली, ये फीलिंग हमें रखनी चाहिए। हर समय पैसा पैसा का नहीं सोचना चाहिए। मनी विल डेफिनेटली, वो आज खुश होके जाएगा, वो 10 लोगों को आपके बारे में बोलेगा। तो माइंड में लॉन्ग टर्म का आप सोचो, शॉर्ट टर्म गेन की नहीं सोचो। क्योंकि ये चीज आपकी बिल्डिंग प्रॉपर्टी 20 साल तो रहेगी ना, तो 20 साल की माइंड में रख के चलो आप। करेक्ट। इनिशियल प्रॉब्ली थोड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाए या कम पैसे आए, हाँ। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ट्रैक्शन दे देगी। बड़ी अच्छी बात आपने कही। मैम, यू रनिंग अ होम स्टे, पीपल आर रनिंग रेस्टोरेंट्स, कैफेज, रिव्यूज कितने इंपॉर्टेंट है? आप ना नर्व्स पकड़ लेते हो इंसान की। आजकल हर बिजनेस, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, सब रिव्यूज पे बेस्ड है। क्योंकि हर आदमी टेक सेवी है, हर कोई कहीं जाने से पहले सबसे पहले उस प्रॉपर्टी की, उस बिजनेस की रिव्यू देखता है। And they also know that difference between bot reviews and difference between organic reviews. क्योंकि वो तो पहचान लेते हैं। नंबर 1 हमारे सारे रिव्यूज ऑर्गेनिक हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट रिव्यूज का ये है कि आज तक मेरे मेरे 80% गेस्ट रिव्यूज देखकर ही आते हैं।
तो आप लगा लो मेरा 80% बिजनेस रिव्यूज पर डिपेंड करता रिव्यूज है। पे टिका है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। कितनी बड़ी आज, मतलब हम आज से 5 साल पहले इस बात को हाँ। हम सोच भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। पर जब टेक्निकल वर्ल्ड ने ही तो हमको वहां तक पहुंचाया है लोगों तक, तो कनेक्शन भी तो उनके रिव्यूज ही करेंगे। तो मैम जो वर्ड ऑफ माउथ है, रिव्यूज बन गए क्या? वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ रिव्यूज बन गए, क्योंकि हमारे सारे रिव्यूज ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक है। अब वो रिव्यूज में लिखते भी हैं, प्लस वो 10 लोगों को, अपने दोस्तों को बताते हैं, भी वो हैं। इंस्टा पर अपनी रील शेयर करते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। मैम एक रिव्यूज की बात चली रही है, तो रिव्यूज एक हमने पढ़ा कि यहाँ आके एक रिजॉर्ट वाली फीलिंग भी आती है और एक घर जैसा वार्मथ भी मिलती है। ऐसा क्या कर रहे हो आप कि दोनों चीजें मिल रही है? अब जब मैं इतने प्रोफेशनल मैरियट लेवल के शेफ्स रख रही हूँ, अच्छा, तो होटल जैसी फीलिंग मिलेगी। ठीक है। आप लिनन के कर्टन्स यूज कर रहे हैं, आप तो एक लग्जरी है वो, तो वो होटल वाली फीलिंग दे रही है। और वार्मथ इसलिए है क्योंकि मेरा जो स्टाफ है वो कोई प्रोफेशनल स्टाफ नहीं है, वो कोई होटल वाला स्टाफ ऐसा वाला नहीं है जो मेरे हाउसकीपिंग और सर्विसिंग के। वो दे ट्रीट यू लाइक अ फैमिली। आप स्पेशली जैसे राकेश है, मनोज है मेरे स्टाफ में, तो उनसे कोई कुछ पूछता है, हमें ये चाहिए ऑड आवर्स में, या उनकी ऐसी डिमांड होती है जैसे छोटा बच्चा ना, हमें ये चाहिए, कभी मना नहीं करते, वो बोलते हैं हो जाएगा जी। तो हमारे ब्लू डोर का ना एक सेकंड नेम हो गया है, हो जाएगा जी, हो जाएगा जी। ये मैम बड़ी रिलेटेबल बात है। ये एक्चुअली वही लोग बता सकते हैं जो पैशनेट हैं। अभी हमने बता रहा था खाली एस्टेट बिंसर, तो वहां हम गए थे, तो वहां के जो मैनेजर थे उन्होंने एग्जैक्टली यही बात कही थी कि सर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो हाँ की इंडस्ट्री है। यस, गेस्ट को हाँ कह दो, अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो आप बाद में सोचना। हाँ, मुझे तंदूरी रोटी रात को 12 बजे चाहिए, हाँ मिल हो जाएगी। जाएगा। मुझे भाई बच्चे ने कहा मुझे फलाना केक चाहिए, हो मिल जाएगा जी। हो जाएगा जी। अब वो कैसे करना है वो आपका टैलेंट हाँ, है। और वो राकेश तो कहता है अरे थोड़ा मैम का भी खर्चा होने दो, आपका तो हो जाएगा जी। आपका तो हो जाएगा जी। ये बहुत अच्छी बात है। मैम जब भी आपको बिजनेस रन कर रहे हो तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक तरफ रेवेन्यू, एक तरफ ग्रोथ। हाउ डू यू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड ग्रोथ? व्हाट सरप्राइजेस यू द मोस्ट? देखो, रेवेन्यू एंड ग्रोथ दोनों कनेक्टेड टू ईच अदर है, बट आप मेन हेड, उसका हेडर, उसका आप ग्रोथ रखो। आई कीप ग्रोथ एज द मेन एंड रेवेन्यू फॉलोज। करेक्ट। मतलब डोंट रन आफ्टर मनी, मनी विल फॉलो यू, फॉलो योर पैशन जैसी बात होती है ना। तो ग्रोथ के लिए सिर्फ रेवेन्यू इज नॉट वन थिंग, इट इज वन ऑफ द ब्रांचेस। यू हैव टू, अपार्ट फ्रॉम इनकम, यू हैव टू हैव योर आइडेंटिटी, you have to have a USP, you have to have a sustainable growth in terms of your personality, your place, your identity, everything combined together. मैम अब आते हैं सस्टेनेबिलिटी की बात आपने कही थी। Yes. You've been awarded with the recognitions for running your homestay. Yes. One of them being in sustainability. Yes. एक अवार्ड है जो आई थिंक आपको, you are the only homestay in India to get this award, right? Yes. This is The 5 first. leaf green leaf rating award. इसके बारे में कुछ बताइए मैम। So this award, स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग, एक नया कॉन्सेप्ट होम स्टेज के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इन एवरी स्टेट दे आइडेंटिफाई द होम स्टेज। सो टोटल हमारे जैसे 200 to 250 होम स्टेज हैं उत्तराखंड में। दे वर जीरो डाउन, उनके हर घर में जाके उनको एक फॉर्मेट दिया गया था, जिस फॉर्म में उनको फिल करना था क्या क्या चीजें वो कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं टू अचीव दिस अवार्ड। तो ये जैसे 5 स्टार होता है वो सर्विसेज के लिए होता है, ये क्लीनलीनेस एंड बीइंग इको फ्रेंडली एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबल उसके लिए होता है। सो लकीली बाय गॉड्स ग्रेस आई एम द फर्स्ट इन द कंट्री टू अचीव दिस अवार्ड एज अ होम स्टे। And Modi ji was going to give me, but वो coordination between state and center हुआ, फिर रिजू जी खुद आए यहाँ पर, and then he gave this award to me. Beautiful मैम। अवार्ड्स की बात हो रही है मैम, तो एक और अवार्ड है इंडियाज फेवरेट होम स्टे। इसकी क्या कहानी मैम? Yes, फेवरेट होम स्टे के नीचे जो कैच है आपने मिस कर दिया। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टार होस्ट ऑफ द ईयर 2023, Yes. द ब्लू डोर। Yes. यस मैम। तो ये स्टार होस्ट ऑफ द ईयर इज द कैच।
There are 14 categories conducted by Make My Trip, MMT. Everybody knows about that. That's also a platform for getting bookings. They do your marketing and give you guests. So I was awarded Star Super Host of the Year based on the reviews again. उसमें particularly, and then there was a 5 jury team वहाँ पर. I had gone to Goa to achieve this award, and Karishma Kapoor gave on the stage this award to me. और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे Marshall का speaker and so many other small gifts they gave me. And you know, it's a very nice concept started by Make My Trip कि आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हो तो उसके लिए आपको special feel कराए. Right. That is a beautiful journey. I mean, we've seen ma'am की journey हमने देख रहे हैं. You know, recognition is also part of the earnings, right? Yes. Because वो भी तो आपको बहुत सारा satisfaction दे रही है. यही तो real richness है आपकी soul की. Soul की feed जो है वो इससे है. और शरीर की पैसे से है. तो भाई होम स्टे रन करके मैम कविता मैम शरीर का भी ध्यान रख रही है और सोल का भी ध्यान. सोल की रिचनेस में तो मैं सुपर रिच हो गई हूँ. पैसा भी आ ही रहा है. पैसा will follow. It's okay. It's following. I'm still a baby in the making. That is a beautiful thing. If Kavita ma'am can say like that कि we are baby in the making, तो हम तो अभी पैदा भी नहीं हुए शायद. तो I mean, it was a great session with Kavita ma'am. बहुत सारी बातें कविता के रूप में हमने सुनी. We understood the passion, the effort, the sacrifices of being a host of a homestay, and that after being a woman who has seen all through a lot of things in her life, who's taken care of family, who's taken care of children, and also in an age which is today's 20, of course, being in 40, she decided to make her mark. तो भाई कोई भी एज नंबर नहीं होती है. आपका पैशन क्या होता है, आपका जिंदगी में करने की इच्छा क्या है, आप कभी भी कर सकते हो. होम स्टेज कविता मैम ने चुना, आप अपना पैशन चुनिए. एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये कहानी बहुत से लोगों को मैम इंस्पायर करेगी. बहुत से लोगों को इसमें से कुछ स्निपेट्स मिलेंगे, एक इंस्पिरेशन मिलेगी to start their own journey. Homestay being one of them. Thank you so much, ma'am, for being and with not us. only just for I also feel that I am very, very pro feminine. All the women I am always there to support. I'm not anti-male. No, that's all right. But I am totally pro-feminine. Right. And 10% rebel women of every generation has made 10% life better for the next generation women. This is the contribution of women of that 10% in way of, say, even doing their education, doing their career, a love marriage. It could be anything, doing your own business, taking a job, going against the wishes for that shows your confidence. अब आज के ज़माने में this is beta generation that is being born. Okay. मुझे जेनजी और ये सब तो बीटा क्या है? इसके आगे अब जो आया है वो बीटा है. बीटा जनरेशन, बीटा जन की ये खास बात है कि पैदा ही कॉन्फिडेंस के साथ हुए हैं. अच्छा, सब आता है. हम तो लाइक यस डैड, यस मॉम, जो पापा मम्मी सोच रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट है. ठीक है. अब वो अपने तरीके से अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन हर जनरेशन में एक जनरेशन गैप होता है. जमाने के साथ आपकी चैलेंजेस डिफरेंट हो जाते हैं, तो यू कांट, जो उन्होंने चैलेंजेस फेस किए हम उनसे डिफरेंट करने वाले हैं, तो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली ना. पार्ट ऑफ देयर एक्सपीरियंस एज गाइडेंस वी कैन टेक, बट एवरीथिंग वी कैन नॉट जस्ट डिपेंड ऑन देम. तो मेरे जनरेशन में आई एम नॉट दैट 10% एट दैट टाइम. आई वॉज डेफिनेटली नॉट अ रिबेल. Though I was good in studies, I was topper in school, head girl, I cleared CPMT, but I didn't have the guts to do my medicine because I thought my parents think the best for me. And luckily, it proved to be best for me. But I will not say that I was a rebel. Rebel were those who made life better for the next generation. ये जो अब generation आई है, beta generation, ये they are like full of confidence कि आप लोगों एक छोटी बच्ची
2 महीने की बच्ची को पता है कि उसको कौन सी राइम में पसंद है, उसकी फेवरेट, लाइक शी विल स्माइल ऑन दैट. 3-4 महीने का बच्चा स्माइल करने लगता है और वो अपने स्माइल से अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहा है कि आई लाइक दिस एंड आई डोंट लाइक दिस. I don't like this. So you should learn to have confidence in yourself. To all the women, I want to say, homestay definitely is one of a rebel that I have taken as a challenge, and I was little scared ki what if I succeed, what if it fails. But then ठीक है, एक अपनी तो फैमिली है, आपका ही तो हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, वो भी तो फेल होते हैं लाइफ में. Right. आप क्यों डर रहे हो कुछ चैलेंज लेने से? कॉन्फिडेंट रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो. उसके लिए फैमिली का सपोर्ट भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, बट आप कॉन्फिडेंट हो ना, ठीक है. आई एम टेकिंग दिस एज चैलेंज. 50-50 है, आएगा नहीं आएगा, रेबल जरूरी है, बहुत जरूरी है. और मैं जब से रेबेल बनी हूँ, दैट लाइफ स्टार्टेड एट 40. My rebel started at 40. What is the definition of rebellion? My definition of rebel is confidence in yourself. You plunge into any challenge. Don't worry about failures. They are part of life. Does that mean Every failure teaches you, and it's a step to success. Take it as that, not as I मैं हार गई, कुकून में घुस गई, अरे अब क्या होगा मेरे डिसीजन से तो गलती हो गई, इतना लॉस हो गया. नहीं. Does that mean rebelling from the family also? Everything, anything. If they are supportive? Best. नहीं तो make them be supportive. ठीक है, ये अच्छी बात आ रही है कि नहीं है तो कर लो, करवाओ, रेबल नहीं करो. करवाओ. तो मैम अब एक लास्ट में आपके साथ सेशन बड़ा दमदार रहा, बढ़िया, आपने दिल से कई बातें की. अब हो जाए एक रैपिड फायर. आपको वही बोलना है जो पहला थॉट आपके दिमाग में आया. Okay. तो शुरू करें, आप तैयार हैं? I am a rebel. ठीक है. rebel. पहाड़ों की सुबह या शाम आपको क्या ज्यादा पसंद है? सुबह. Why? ये तो रैपिड में नहीं था. अब आ गया, अब आ गया. सुबह इसलिए क्योंकि बिकॉज वो इट शोज लाइफ कमिंग. मैम सेलिब्रिटी की बात करते हैं. कपिल देव जी तो ऑलरेडी आ चुके हैं. एक कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो आप चाहोगे यार एक बार आ जाएगा? I am quite inspired by Shobha Day. It would be really nice अगर if I get the chance to host her. तो इफ यू आर लकी इनफ, शोभा जी आप देख रही हैं अगर, तो जरूर आइए एक बार. I wish. मैम गेस्ट चेक इन करते हैं, सबसे कॉमन सवाल क्या पूछते हैं? Wi-Fi password. वाईफाई पासवर्ड. ये बड़ी अच्छी बात कही, ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने. भाई आजकल की नीड हो गई, रोटी कपड़ा मकान. स्लो डाउन स्पीड करने के लिए जो सबसे जरूरी है छोड़ना, वो नहीं छूटता लोगों से. नहीं छूटता लोगों से. मैम आपके लिए एक परफेक्ट संडे मॉर्निंग का मतलब क्या है? देखो जिस तरह का मैं काम कर रही हूँ, सैटरडे और संडे मेरे मंडे ट्यूसडे हैं. ठीक है. परफेक्ट मंडे क्या है? परफेक्ट मंडे का ये है कि मैं सुबह से शाम तक फोन को एरोप्लेन मोड में रखूं और अपने फ्रेंड्स के साथ कार में पहाड़ों पर घूमने जाऊं. क्या बात है. मैम होमस्टे चलाते हुए आपने अपने बारे में सबसे सरप्राइजिंग क्या डिस्कवरी की है? मेरे ये डिस्कवरी करी है कि शादी से ज्यादा डेंजरस डिवोर्स है. डिवोर्स कभी मत लो. अगर एक लाइन में आपने होमस्टे को डिस्क्राइब करना है तो वो क्या होगी? इट्स अ वर्ल्ड फॉर मी व्हिच आई सी थ्रू माय गेस्ट आईज. क्या बात है. कविता, यू रियली नाम की जो चीज है ना आपके में है वो बात. नेक्स्ट ड्रीम डेस्टिनेशन जहां आप खुद ट्रैवल करना चाहते हो? डेफिनेटली केनिया में जाना चाहती हूँ और पेरिस घूमना चाहती हूँ. क्या बात है, पेरिस चलेंगे. ब्लू डोर के दरवाजे खुले हैं आज इस पॉडकास्ट में. इन दरवाजों के अंदर की जो दुनिया थी, जो वर्ल्ड थी, उसके बारे में हमने बातचीत की. फिर उसके पीछे की कहानी के बारे में हमने बातचीत की. एक होस्ट की जर्नी को हमने समझा, सैक्रिफाइसेस, उनका पैशन, उनका आइडेंटिटी का जो जज्बा था बनाने का, और एक वो जज्बा जो ब्लू डोर को ब्लू डोर बनाता है. हमें पता लगा आज कि होस्टिंग अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है. ये एक पैशनेट बंदों के लिए एक अपने आप में बहुत satisfying जर्नी है. Of course you get money out of it. Money is a byproduct, but what you also earn is respect. What you also gain is self-respect. What you also learn and understand is कि आपके अंदर बहुत कुछ है
जो आपने बचपन में या अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, बट आपको जब एक्चुअली धरातल पे काम करके समझ में आता है कि यस, ये तो मेरे पास था ही, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है जो मैं आराम से हैंडल करती थी। तो आप अगर इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं ऐसे लोगों से, तो यही पॉडकास्ट आपके लिए है। बहुत सारे लोग हम अक्सर इस पॉडकास्ट में लाते रहते हैं, इंस्पिरेशन स्टोरी शेयर करते हैं। ऑफ कोर्स हमारा होमस्टे एकेडमी चैनल है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हमारी इंस्पिरेशन होस्ट से हो, एक होमस्टे ओनर से हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, you will keep getting inspiration from whatever sources we can achieve for you. The idea is simple कि आप जो भी यहाँ से सीख सकते हैं। हाँ, आपको कहना आना चाहिए, बट ना भी कहना आना चाहिए। Yes. On that note, thank you so much, और मिलते हैं अब अगले पॉडकास्ट में होमस्टे की कहानी, होस्ट की जुबानी।